हाँ जी, this is Amit Kumar from Electrical Department, Chandigarh Polytechnic College, and today we will discussing about the subject double E and double D, that is Electrical Engineering Design and Drawing. And now I am studying the first topic of this subject, and now I am sharing the screen with you for the diagram of the first topic. This is the first topic of second chapter, that is distribution system. The chapter name is panel and distribution board. So first we will discuss the distribution system. So what is the distribution system? Distribution system is the demand of electric power for domestic purposes is increasing day by day. जो डिमांड है इलेक्ट्रिक पावर की वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज. जो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए लोड यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ये कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक पावर की, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. And many domestic appliances such as mixer, juicer, hair dryer, geyser, washing machine, etc. are being extensively used in domestic purposes. और जो हमारी मैनी अप्लाइंसेज है, डोमेस्टिक अप्लाइंसेज जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं अप्लाइंसेज, उनमें हम इलेक्ट्रिसिटी डेली के डेली हम यूज़ कर रहे हैं. इसलिए जो हमारी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. Therefore, it becomes necessary that domestic installation should be well planned, keeping in view the other factors like their control and safety and also the scope for future expansion. इसलिए हमें ये ज़रूरी हो गया है कि जो हमने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन करनी है, जो हम प्लान कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, उनकी हमें जो हम अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं उनकी कंट्रोल के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए हम जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अच्छे से प्लान कर सके और डिज़ाइन कर सके. तो ये मैं आपको डायग्राम शो कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो हम घर में सप्लाई देने के लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोड को सप्लाई दे रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज फेज. we are taking supply from we are taking a single phase supply, that is single phase and neutral. So first I will define the equipments used in this diagram. First, this is energy meter, this is the main switch, this is the main distribution board, and this is the sub main distribution board. So first I am discussing the energy meter. So what is the energy meter? Energy meter is used to measure the electrical energy. uh, it is always used in domestic purposes, for industry purposes, for measuring the consumption of energy that is consumed by domestic, for the domestic load and for the industry load, for the commercial purposes. Everywhere we use energy meter for the generation of electricity bill. And now I am discussing the circuit diagram, that how the supply is given to the energy meter, to main switch and to other sub distribution board and main distribution board. So first of all, ये जो हमारी फेस एंड न्यूट्रल है इनसे सप्लाई आ रही है. जो हमारी पहले किसके पास जा रही है? एनर्जी मीटर के पास. एनर्जी मीटर इज फर्स्ट टेकिंग द सप्लाई फ्रॉम द मेन सप्लाई. Main supply is given to the energy meter, and energy meter is first taking the phase and neutral. The dark line is phase and the dotted line is known as neutral. Then the output of this energy meter is given to the main switch. The output is also of single phase and a neutral, which is given to the main switch. And in the main switch we have two components. One is the switch that is used to on or off the supply. Okay, this main switch is used to on or off the main supply of the domestic load, whole domestic load. And the fuse, these these are the KitKat fuse. These are used to protect our circuit or equipment or home appliances
when the over voltage is occurred or below the normal voltage is occurred. So they protect our domestic loads and our appliances. So now the output of this main switch is given to the main distribution board. मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास हमारी सप्लाई जा रही है, जो आउटपुट आ रही है मेन स्विच की। एंड पहले एक हमारा फेस जा रहा है इसके पास और एक न्यूट्रल जा रही है वैसी डॉटेड लाइन, ठीक है। एंड दिस इज आवर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इन द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड these are the fuses, KitKat type fuses. We use 3 fuses for the 3 loads, and this is the neutral link. Neutral link is used to obtain for the obtaining of neutrals, more than one neutral. So we are using the neutral link here for more than one neutral, and it is the our requirement that what is our need. If our need is single load, then we are using single fuse, and if we have more than one load, then we are using more than one fuse. Then the output of main distribution board is given to the sub distribution board. The sub distribution board is also same as main distribution board, but it is used for more than one loads. एंड इसमें भी हम सेम फ्यूज वैसे यूज कर रहे हैं और न्यूट्रल लिंक यूज कर रहे हैं। बस हम ये कर रहे हैं कि इसमें अगर हमने मान लो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये हमने एक रूम के लिए यूज कर लिया, तो अगर आगे लोड देना है तो हमने इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे सप्लाई दे सकते हैं और आगे सब सर्किट के लिए। लेकिन वो भी हमारे क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगे थ्रू द फ्यूज, एंड फ्यूज के थ्रू हमारे प्रोटेक्ट होंगे वो, ताकि अगर हमारी ओवर वोल्टेज होती है या फिर हमारा कोई शॉर्ट सर्किट होता है अकॉर्डिंग ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, देन द फ्यूजेस आर प्रोटेक्टेड द होम अप्लायंसेस फ्रॉम द every dangerous situation. So this is the whole diagram of distribution system. And distribution system is mainly used for the domestic purposes. It is mainly used for the domestic purposes, and this application of this circuit are like home appliances. These are the home appliances: mixer, juicer, hairdresser, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। हम जितने ज़्यादा लोड यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूज़ उतने ही बढ़ाते जाएंगे। बाकी हमने जब ये सर्किट के अकॉर्डिंग ही आजकल हम फ्यूजेस की जगह एमसीबी यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन जब मान लो कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा फ्यूज़ डैमेज हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्यूज़ रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन एमसीबी में अगर आजकल हम एमसीबी यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो एमसीबी हमारे ट्रिप हो जाते हैं। तो ट्रिप होने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। फ्यूजेस भी ब्रेक कर देते हैं, लेकिन उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। सो इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग एमसीबीज in the replacement of fuse. So now we are going to the next topic, light and fan sub circuits and power sub circuits in a building. इस डायग्राम में हम बता रहे हैं कि जो लाइट फैन सब सर्किट है और पावर सब सर्किट है उसकी डायग्राम को, उसके सर्किट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे सर्किट डिजाइन करते हैं, कैसे हमारे घर में सप्लाई आती है। एंड इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। फर्स्ट, द सील्ड KitKats एंड न्यूट्रल लिंक्स आर एलिमिनेटेड नाउअडेज टू अवॉइड थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमें पता ही है कि
चोरी के कारण हम क्या कर रहे हैं, किटकैट एंड न्यूट्रल लिंक हम आगे के टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें चोरी का डर रहता है। एंड द सप्लाई इज गिवन डायरेक्टली टू द एनर्जी मीटर फ्रॉम नियर बाय सर्विस पोल्स। और हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी मीटर से डायरेक्टली सप्लाई दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं सप्लाई, जो हमारे नियर बाय सर्विस पोल्स होगा। डायग्राम क्या शो कर रही है, 2 मीटर्स लगे हुए हैं हमारे पास, 2 एनर्जी मीटर्स लगे हुए हैं, मेन स्विचेस है, ये हमारे मेन स्विचेस है जो मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हैं। एंड सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स फॉर पावर एंड लाइटिंग सर्किट। और आगे हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फॉर पावर एंड लाइटनिंग। This circuit shows separate energy meters arrangement provided for the two circuits, light and fan circuit and power circuit. This is इस सर्किट में हमने 2 एनर्जी मीटर प्रोवाइड किए हैं 2 सर्किट्स के लिए, 2 अलग अलग सर्किट्स के लिए। और हमने कौन कौन से 2 अलग अलग सर्किट हैं, एक तो लाइट के लिए, एक हमने फैन के लिए यूज की है, ठीक है। एंड आगे एक पावर सर्किट के लिए, पावर सर्किट के लिए ये जो हमने सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज किया है। दिस इज पर्टिकुलरली डन वेयर द टैरिफ्स एंड डिफरेंट फॉर फैन एंड लाइट सर्किट्स एंड पावर सर्किट। ये पर्टिकुलरली डन किया जाता है जब हमने टैरिफ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैन एंड लाइट सर्किट एंड पावर सर्किट को डिजाइन करना होता है, उनके लिए सर्किट डिजाइन करना होता है, वायरिंग करनी होती है, उसके लिए हम ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं। In the distribution board circuit as well as in sub-circuit shown figure 2.1 and 2.2 respectively, rewirable fuse units have been used। हम इसमें rewirable fuse यूज कर रहे हैं। अगर वो ब्रेक कर देते हैं सर्किट को कोई ओवर लोड कंडीशन में या ओवर वोल्टेज कंडीशन में, उसके बाद हमें उसको फिर से वायरिंग करनी पड़ती है for the protection of the wiring system. But these days rewirable fuses have been replaced by miniature circuit breaker। मैंने आपको बताया था कि अब जो मॉडर्न डेज है हम क्या कर रहे हैं, रिवायरेबल फ्यूज की जगह पे एमसीबीज यूज कर रहे हैं, जिनको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोल रहे हैं। मेन एडवांटेज क्या है वो भी मैंने आपको बताई थी कि इट इज मोस्ट एक्यूरेट एंड एफिशिएंट सिस्टम, क्योंकि एमसीबी हमारा मोस्ट एक्यूरेट एंड एफिशिएंट सिस्टम है इन ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में हमारा एमसीबी जो है वो बेस्ट है, इसलिए हम फ्यूज की जगह पे आजकल एमसीबी यूज कर रहे हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द सर्किट। इन द सर्किट here are 2 energy meters। the supply is again a single phase। हमने सिंगल फेज सप्लाई यूज की है, और सिंगल फेज सप्लाई में हमने क्या किया है, जो फेस है हमारा वो डार्क लाइन से हम शो कर रहे हैं। हम एक फेस को दोनों एनर्जी मीटर में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारा चला गया है, हमने 2 वायर्स ले लिए फेस से, उसके बाद एक वायर हमने भेज दी है एनर्जी पहले वाले एनर्जी मीटर को, एंड सेकंड वायर भेज दिया सेकंड एनर्जी मीटर को। एंड न्यूट्रल इज आल्सो सेम एज फेस। न्यूट्रल भी हमने न्यूट्रल लिंक यूज किया है, न्यूट्रल लिंक से हमने एक न्यूट्रल भेज दी है फर्स्ट एनर्जी मीटर को, एंड सेकंड न्यूट्रल लिंक न्यूट्रल वायर इज गोन टू second energy meter। And now we are going to given the output of this energy meter to the main distribution boards that is used for fan sub circuit and light sub circuit। अब हम इनके आउटपुट्स दे रहे हैं मेन स्विचेस के थ्रू इन मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे। अब देखिए जो फर्स्ट एनर्जी मीटर की आउटपुट है वो हम दे रहे हैं पहले वाले मेन स्विच को, फर्स्ट मेन स्विच को, एंड न्यूट्रल इज आल्सो गिवन टू फर्स्ट मेन स्विच, एंड आउटपुट ऑफ सेकंड एनर्जी मीटर इज गिवन टू द सेकंड मेन स्विच, एंड न्यूट्रल ऑफ सेकंड मेन स्विच इज आल्सो गोन टू द main switch second main switch। And working of these main switch is also same as I discussed in the last diagram।
इनका काम भी वही है कि हमने मेन सप्लाई को ऑन या ऑफ करना है। अगर मैं इस मेन स्विच को ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे इस सर्किट के पास सप्लाई नहीं जाएगी। और ये डबल पोल स्विच हमने यूज किया है यहाँ पे। ये मेरा न्यूट्रल लिंक है, ये मेरा रिवायरेबल फ्यूज है, और ये टोटल जो बॉक्स है ये पूरा मेन स्विच है। और ये मेन स्विच से अगर मैं सप्लाई ऑन करूँगा तब मेरी सप्लाई जाएगी आगे इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास, जो हम लाइट सर्किट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइट सब सर्किट के लिए। एंड ये जो स्विच है, मेन स्विच है, ये भी मेरा सेम वैसे ही काम कर रहा है। आगे जो इसकी आउटपुट है वो जा रही है, जो मेरा फेस है, फेस मेरा जा रहा है फ्यूज के थ्रू होके, और जो मेरी न्यूट्रल है वो मेरी न्यूट्रल लिंक के थ्रू होके जा रही है। तो इसमें न्यूट्रल लिंक के थ्रू होके मेरी न्यूट्रल जा रही है आगे न्यूट्रल लिंक के पास, जिसमें हमने एक से ज़्यादा न्यूट्रल आउटपुट निकाली है एक इनपुट देके। जैसे मैंने पहले बोला था कि हम न्यूट्रल लिंक यूज़ करके हम एक से ज़्यादा न्यूट्रल ऑब्टेन कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे न्यूट्रल लिंक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इन्होंने 4 फ्यूज़ लगाए हैं सर्किट में। 4 फ्यूज़ इस कारण लगाए हैं क्योंकि हमें लोड 4 होगा, 4 लाइट्स होंगी मेरे पास, इसलिए 4 हमने फ्यूज़ लगाए हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने आउटपुट पे 4 न्यूट्रल्स निकाली हैं, 4 फेसेस के लिए, 4 फेसेस के लिए 4 फ्यूज़ लगाए हैं, और 4 वहीं से हमने न्यूट्रल लिंक से भी 4 न्यूट्रल लिंक आउटपुट पे ले लिए हैं for given output to the load. Now we are going to the second main switch. In the second main switch, the supply is coming from the second energy meter, and in this switch we also switch on and off the main supply by this DP. इस डबल पोल स्विच की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेन सप्लाई को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे न्यूट्रल लिंक लगी हुई है, फिर से ये न्यूट्रल हमारी जा रही है इस जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास, वैसे ही जैसे हमने इसमें लगाया हुआ था न्यूट्रल लिंक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में 3 न्यूट्रल्स जा रही हैं बाहर आउटपुट पे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3 फ्यूज यूज हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे जो आउटपुट के लिए हमारे पास फैन का लोड है वो 2 लोड ही है, उसकी क्वांटिटी 2 है, हमारे पास 2 फैंस होंगे, इसलिए हमने 2 आउटपुट के फेसेस छोड़े हैं फैन के लिए। और जो हमारा थर्ड फ्यूज है वो हमारा जा रहा है नेक्स्ट सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के पास, सब सर्किट है जो ये मेरा पावर सब सर्किट के लिए यूज हो रहा है, ये वाला सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एंड और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमने 3 निकाली है, 2 हमने दी है फैंस को जो हमारा एज ए लोड काम कर रहे हैं, एंड जो मेरी लास्ट वाली न्यूट्रल है वो हमने दे दी है जो नेक्स्ट वाला हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अब इस सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हमने फेस और न्यूट्रल यूज़ कर ली है, जो हमने यूज़ की है ये सेकंड वाले फैन सब सर्किट वाले मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आउटपुट ली है। हम यहाँ से भी ले सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहे इस सर्किट से ले चाहे इस सर्किट से ले, हमारे पास जो वोल्टेज है वो सेम आ रही है। सिंगल फेज सप्लाई हमारी आ रही है हमारे पास, जो 220 से लेके 240 वोल्ट के नियर अबाउट होगी। एंड इसमें अब आप देखो इस सर्किट में क्या लगा हुआ है, इसमें भी 3 फ्यूज लगे हुए हैं। फ्यूजेस को सप्लाई आ रही है इस बार से, इस बार से क्या कर रहे हैं, बस बार से। हाँ जी, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये बस बार यूज़ कर रहे हैं हम न्यूट्रल लिंक के लिए, हम न्यूट्रल ऑब्टेन करने के लिए न्यूट्रल यूज़ करते हैं, और फेसिस को ऑब्टेन करने के लिए अगर हमें एक से ज़्यादा फेसिस चाहिए तो हम इनपुट एक फेस दे देते हैं। लेकिन अगर हमें आउटपुट पे ज़्यादा फेसिस चाहिए एक से ज़्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस बार यूज़ करते हैं पैनल में, पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, जहाँ पे हमारे पास लोड ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एक बस बार यूज़ की है, यहाँ पे भी बस बार यूज़ की है जो हमें एक से ज़्यादा फेसिस ऑब्टेन करके दे रही है। क्योंकि इस बस बार एक तरह का एक कंडक्टर ही है, कंडक्टर एक स्ट्रिप है, कॉपर की हो सकती है, एल्युमिनियम की हो सकती है। कॉपर की थेफ्ट होने की
परेशानी रहती है, चोरी होने की परेशानी रहती है, इसलिए हम कम यूज़ करते हैं। लेकिन कॉपर इज़ ए बेस्ट कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, सो वी आर यूजिंग कॉपर, अदरवाइज वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम। सो ये दो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं बस बार के लिए। यहाँ पे भी हमने बस बार लगाई है, बस बार से हमने स्पेस तो एक ही दी है बस, बट आउटपुट में हमने 3 फेस निकाल लिए हैं लोड के लिए, जो पावर सब सर्किट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। और जो हमारी न्यूट्रल है, फिर से न्यूट्रल इनके पास गई है, न्यूट्रल से हमने इनपुट एक दिए, लेकिन आउटपुट पे हमने अकॉर्डिंग टू द लोड 3 न्यूट्रल भी निकाल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फेसेस भी 3 निकाले थे, क्योंकि हमारे पास लोड की क्वांटिटी 3 होगी, इसलिए हमने यहाँ पे 3 न्यूट्रल्स भी निकाल लिए। सो नाउ अब ये जो आउटपुट्स हैं ये हम लोड के लिए यूज़ कर लेंगे। अब इस सर्किट की खासियत ये है कि हमने यहाँ पे अलग अलग एनर्जी मीटर यूज़ किए हैं, जबकि हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, एनर्जी मीटर एक ही यूज़ किया था और उसी को सप्लाई आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। जो हमारी फर्स्ट मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था उसकी आउटपुट दे दी थी हमने सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। लेकिन इसमें हमने 2 एनर्जी मीटर अलग से यूज़ किए हैं, एंड बस जो हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसको हमने ये जो सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसकी आउटपुट दे दी है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और ये फुल फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एमडीबी का जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एनएल का मीनिंग है न्यूट्रल लिंक, डीपीआईसी है डबल पोल आयरन फ्लैट स्विच, और एसडीबी है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एमडीबी है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये 1 2 3 का मीनिंग कोई नहीं, बस हमने नंबरिंग दी हुई है जो हमने लोड यूज़ करने हैं। यहाँ पे मेरे पास लोड की क्वांटिटी 2 है, इसलिए 1 और 2 दिया हुआ है। 1 2 3 4 का मतलब है कि यहाँ पे लोड हमारे पास 4 होंगे, जो लाइट सर्किट है वो 4 लाइट्स यूज़ होंगी। और यहाँ पे पावर स्विच फॉर सिंगल फेस मोटर, यहाँ पे हमने डबल पोल स्विच यूज़ किया हुआ है सिंगल फेस मोटर को सप्लाई देने के लिए। सॉकेट्स रखी हुई है, यहाँ पे सॉकेट्स रखी हुई है। एनर्जी मीटर के बारे में आपको पता ही है कि एनर्जी कंजप्शन को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। और मेन स्विच हमारा सप्लाई देने के लिए, सब अगर हमने मेन सप्लाई से इसको यूज़ करना है वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। बाकी आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।